Dear friends, we have been going on changing sentences from active voice into passive voice. Now, in the last video, what we have done, let us revise some of the points. Remember, we have to follow the 6 steps. All of you might be knowing it. That is dividing the sentences into 4 parts: subject, verb, object, and complement. Then exchanging the subject with the object. Number 3, providing a suitable helping verb. Number 4, writing or using the main verb always in the third form. Number 5, using an agent or a new word called as by. And number 6, adjusting the complement or the other words according to the meaning of the sentence. So, in the last class we have seen 2 tenses. Now the most difficult problem for most of the students is concerned with 2 steps. That is, which helping verb is to be used in a particular sentence. That is a main problem. That is the biggest problem for most of the students. Secondly, the next problem is what is the third form of the main verb. That means a main verb has been conjugated into 3 parts. That is the present form, the past form, and the past participle form. For easy saying, we call it by the first form, the second form, and the third form. Now, in passive voice, we have to always use the third form of the main verb in whatever form the main verb is in the active voice. When it is written in the passive voice, it has to be written in the third form, that is the past participle form. But most of the students are unaware of the third form of the verbs. So these 2 problems will create many problems for the students, and they will be unable to convert the sentence into passive voice. So now let us go by some tricks. Suppose we do not know what is the tense of a given sentence, then let us follow some tricks. We have already seen 2 tricks in the previous class. That is, let us see trick number 1. Let us identify the sentence. If the sentence is possessing or having a particular word called as had, then the easy method is just add been to this word. आप इस पे ध्यान से चलें. यदि सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हमारे सामने है, और उसमें आप ये ढूंढें कि ट्रिक नंबर 1 के हिसाब से उस सेंटेंस में हैड है क्या. यदि संयोग से है तो आपके पैसिव वॉइस में रिपीट करें, BWN लिखे, अवश्य लिखे, और आपके पैसिव वॉइस बन जाएंगे. बाकी 4-5 स्टेप और है जो आप उसको आराम से कर पाएंगे. और यहाँ पर थर्ड फॉर्म को लेकर आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी, बिकॉज इसमें जिस सेंटेंस में हैड होगा उसमें थर्ड फॉर्म इसके बाद जरूर मिलेगा. अब दूसरा ट्रिक, जो द सेकेंड ट्रिक दैट वी हैव सीन is, if any sentence is in front of us with any one of the modal auxiliary verbs, that is, only one is written here, can. In the previous class we have written many. Can is a modal, could is a modal, may, might, should, must, ought to, shall, will. These are the modal auxiliary verbs. If any one of them is in the sentence, आपको just क्या करना है, इसको पहचानिए. यदि ये दिखा आपको, ये वाला दिखा तो इसके साथ बीन जोड़िए और आपका सेंटेंस
हो जाएगा 50% करेक्ट। यदि ये दिखा तो इसके साथ बी जोड़िए और आपका सेंटेंस अच्छे से सही हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं ट्रिक नंबर 3। सपोज हमें गिवन सेंटेंस का टेंस नहीं पता। दो ट्रिक हमने पहले से देख लिया। यदि किसी सेंटेंस में हैड है तो हैड बीन कर दें, कैन है तो कैन भी कर दें। और यदि किसी सेंटेंस में हैव या हैज में से कोई एक आया हो, आप फिर से ध्यान दें, या सेंटेंस में हैव हो, आपके सामने यदि सेंटेंस हैव लेके आता है तो आप उसको हैव बीन कर दें। सपोज द सेंटेंस इज possessing the word have, just convert it into have been. And suppose the sentence is possessing the word has, just convert it into has been. लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप किसी भी सेंटेंस में have आने पर have been और हैज आने पर हैज बीन नहीं कर सकेंगे। इन दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू सपोज द सेंटेंस इज कैरिंग हैव, देन योर आंसर कैनॉट बी हैव बीन, बिकॉज इट कैन बी हैज बीन ऑल्सो। वाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ लेट अस सी, वी विल सी द एग्जाम्पल्स आफ्टर 2-3 minutes. Let us see in which condition we have to use have been. Suppose the new subject, that means नंबर 3 पे जो सब्जेक्ट होगा वो न्यू सब्जेक्ट बनेगा यदि वो प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है। यानी जैसे ये वाले सेंटेंसेस, ये देखिए, आई होगा या वी हो या यू हो या दे हो, या कोई भी एक नाउन में एस हो, यानी बॉय का बॉयस हो तो इसमें ये बहुवचन हो गया। गर्ल का गर्ल्स हो तो ये बहुवचन हो गया। ऐसी स्थिति में आप हैव बीन यूज करें। इसी स्थिति में आपको हैव बीन यूज करना है। यानी सेंटेंस में हैव या हैज होने से केवल हैव बीन लिखे, ये जरूरी नहीं होगा। हो सकता है कि सेंटेंस में हैव या हैज में से कोई एक हो और हमारे सेंटेंस में या तो हैव रिपीट हो जाए या हैज बीन रिपीट हो जाए। ये आपको आने वाले जो नया सब्जेक्ट है, द न्यू सब्जेक्ट दैट इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यू सेंटेंस, यदि उसमें आई आ जाए या वी या यू या दे या कोई भी नाम जो कॉमन नाउन है, जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, पीपल है, स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है, इस प्रकार के नाम आने पर आप वहां पर हैव बीन कर सकते हैं। और यदि वहां पर एक व्यक्ति को बताने वाला शब्द, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओनली टू डिनोट ओनली वन पर्सन, इफ द सब्जेक्ट इज ही, ओनली वन, शी ओनली वन, इट ओनली वन, बॉय ओनली वन एंड गर्ल ओनली वन, स्टूडेंट ओनली वन, टीचर ओनली वन, इन दैट कंडीशन आप हैव या हैज वाले सेंटेंस में हैज बीन लिखिए। सपोज नाउ अभी हमको ट्रिक नंबर 3 में क्या मिला? या तो हैव बीन लिखे या हैज बीन लिखे। व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम ट्रिक नंबर 3? जस्ट फाइंड आउट वेदर द सेंटेंस इज possessing have or has. If the sentence is possessing any one of these, then our answer will be either have been or has been. In order to clear it, we will see the example. See, they have sent the message. The sentence has been, according to the, remember the 6 steps. According to it, we have divided the sentences. That is, the sentence has been divided into 4 parts. Let us see. The first one is they. This is the subject. The second one is have sent. हाँ, देखिए आपका ये आप पहचान लीजिए, शब्द आ गया है। अब आप यहीं पे आप ये मन बना लीजिए कि या तो आपको ये हैव बीन लिखना पड़ेगा या हैज बीन लिखना पड़ेगा। यानी हैव दिखा, हैव या हैज में से जो भी दिखा तो आप पहचान लो। यदि ये दिखा and suppose you have understood that have is inside the sentence,
then you have to write either have been or has been according to the subject. Now let us see who is going to become the subject. देखिए नंबर 3 पे ये है old sentence में object. This is the object of the given sentence. This will become the subject. Now let us come here. देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है द मैसेज. अब आप देखिए द मैसेज और मैंने बाकी जगह छोड़ दी है, सेंट लिख दिया है पहले से, क्योंकि हैव या हैज वाले सेंटेंस में आपको थर्ड फॉर्म मिलेगा. आप जस्ट उसको वापस रिपीट कर दीजिए. एजेंट बाय लिखिए और दे को कन्वर्ट करके दम लिख दिए, आपका ये पैसिव हो गया और वो पुराना था आपका एक्टिव है. अब अपन यहाँ पे लिखें क्या है, ये लिखें. देखें कि द मैसेज यहाँ पर सिंगुलर है कि प्लूरल है. आप देखिए सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर, when we make it as the subject of the new sentence, the same singular is written here, therefore you can write has. And if has is written, तुरंत आप साथ में been लिख दीजिए. यानी जो had के साथ हमने कर दिया है वो बीन यहाँ पर भी आ रहा है. हैड के साथ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था. हैड सभी प्रकार के टेंस में सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज में आता है. इस कारण से बीन लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं आई. लेकिन हैव और हैज सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से हमको यूज करना पड़ेगा. तो हमने ये जो ओल्ड सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को यहाँ नए सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाया. तो आप यहाँ पर हैज लिखेंगे, हैव नहीं लिखेंगे. लेकिन बीन किसी भी स्थिति में हो, हैज हो या हैव हो, बीन जरूर लिखे. इस एरिया में ही सारी पूरी बातें टिकी हुई है, क्योंकि ये तो आपको सेंटेंस में से मिल ही जाएगा. ये आपको याद है, ये कन्वर्शन याद है. और दे का देम हो गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया. अब सेकंड नंबर के सेंटेंस देखिए, ही हैज सेंट मेनी मैसेजेस. इसी सेंटेंस में थोड़ा सा परिवर्तन करके यहाँ नीचे लिखा, दे की जगह ही लिख दिया. हैव सेंड की जगह देखिए हैज सेंड आ गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करना चाहिए. देखिए यहाँ पर देखिए ही हो तो आपको हैज का प्रयोग करना है और हैज बीन हो जाएगा. लेकिन आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो तीसरा क्या है, मेनी मैसेजेस. इसमें क्या लिखा, मैसेजेस. मैसेजेस के साथ क्या लिखा, मेनी का मतलब है मोर देन वन. दैट मीन्स हम जब इसको सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, दिस इज प्लूरल. देयरफॉर हमें क्या करना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट्स. अब ये देखिए बॉयज़ गर्ल्स के अनुसार जो है ये मैसेजेस है, तो ये यहाँ पर आपको हैव लिखना पड़ेगा, हैव. और हैव अकेले नहीं, हैव के साथ में क्या लिखोगे, हैव बीन. ये देखिए आपका ये सेंटेंस फटाफट पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है. और इस एरिया को आप ध्यान में रखिए. और ये हैज का कंपैरिजन इससे करना है, और ये हैव का कंपैरिजन इस प्लूरल से करना है, और हैज का कंपैरिजन ये सिंगुलर से करना है. इस प्रकार आप सेंटेंसेस को करिएगा. इट इज डेफिनेट दैट यू विल बी एबल टू convert sentences from active voice into passive voice. So far we have seen 3 tenses. This is past perfect. This is modal auxiliary verb sentence. It is not concluded. It is not calculated as any tense. And now the second tense is the present perfect, in which either have been or has been should be used. Let us see tomorrow with more examples.